Alright class, it's your O-level maths, course code is 4024. In this video we are going to solve paper 2-2. It's your May-June 2021. So let's start. Alright, in the first part it says that the price of an electric drill is $78. In a sale, the price is reduced by 15%. If the price is reduced by 15%, that means you need to subtract it from 100, so you are getting 85%, right? Its original price is 78 and we know that original percentage is 100%. Now after the sale the price is reduced by 15%, that means that we have 85 here and the new price we need to find out. For that part you need to solve it with the cross multiplication. So 85 times 78 and divided by 100. So the first part answer is $66.3. That is your first part answer. Next one. The exchange rate between dollars and euros is $1 equals 2.85 euros. Michael changes $100 to euros. He buys a clock costing euro 58.99. He changes the remaining back to dollars. तो माइकल के पास क्या था? If it's $1, then it is equals to 0.85 euros. It is given in the question. If he has $100, how much euros he have? So you need to do the cross multiplication. So y is equals to 85 euros, right? इसका मतलब अगर वो $100 कन्वर्ट करेगा तो उसको 85 euros मिल जाएंगे. अब क्या हुआ? He bought a clock at 58.99. तो अब मैं क्या करूँगा? 85 में से I need to subtract 58.99. So 85 minus 58.99 is equals to 26.01. ये 26.01 क्या आया? ये उसके पास यूरोज चल रहे, ठीक है ना? उसने क्या किया? उसके पास जो रिमेनिंग मनी थी उसने उसको दोबारा कन्वर्ट कराया डॉलर्स में. दोबारा कन्वर्जन रेट आएगा हमारे पास. अगर हमारे पास $1 था तो वो बराबर था 0.85 यूरोज़ के. अगर 26.01 यूरोज़ हैं तो बताएं भाई उसमें कितने डॉलर्स होंगे? तो लेट्स सपोज इट्स डी डॉलर्स, राइट? So again we need to do the cross multiplication. So 0.85 times d is equals to 26.01. So 26.01 divided by 0.85, it is equals to $30.6. So that is equals to $30.6. Towards the next part, part C. We have two categories, A simple and cool compound. Simple interest at 2.1% per year and compound interest at 2% per year. Patro invests $3,500 in the A simple account for 4 years. Eliana invests $3,500 in the cool compound account for 4 years. At the end of 4 years, who has more money in their account and by how much? So first we are going to simplify for A simple, right? So it's A simple. A simple पे आपके पास apply क्या हो रहा है? We need to apply simple interest here. So interest is equals to PRT over 100. That is the working formula. The principal we have, it's 3,500. Time is 4 years and rate is given, it's 2.1% per year. Placing values, principal is 3,500. Rate is 2.1%. Time is 4 years divided by 100. Simplify करते हैं इसको. So that will be 3,500 times 2.1 times 4 and divided by 100. So you will get 294. That is your interest, simple interest, right? $294. It says who has more money, so I need to find out the amount. And amount is what? Amount is principal plus interest. So the principal is 3,500 plus interest is 294. So 3,500 plus 294 is equals to 3,794. That is the total amount for simple interest. On the other hand, if we are going to solve for compound interest, all right, compound interest, the working formula is amount is equals to principal 1 plus r over 100 to the power n. Now, for principal, it's 3,500. 1 plus rate is 2 divided by 100. Number of years are 4. We need to simplify, so that leads to 2 divided by 100 plus 1 with the power 4 times 3,500. So you will get 3788.5. 3788.5
that is the amount for compound interest. So who has more money in their account and by how much? So I think that simple interest has more money. So you need to simplify and you need to subtract them. So it will be minus 3794. That is 5.487, 5.48. So by 5.48 and it will be simple interest. Has more money, सिंपल इंटरेस्ट कौन ले रहा है इनमें से? सिंपल इंटरेस्ट ले रहा था पिट्रो. तो पिट्रो के पास जो है वो अमाउंट होगा ज़्यादा बाय $5.48. ये आपका आंसर हो गया. Moving towards the next part. The table shows the midday temperature and the number of cups of hot chocolates nutshell on each of 10 days. You have the data. Firstly, you need to plot the points here. So at 21, we need to plot 8 on the y-axis. So 21 and 8. So 21 is this one, right? 21, 22, 23, 24, 21. And 21 पे हमारी value क्या है? 8 है. So 5, 6, 7, 8. So that is your first point. After that, it says 21 पे 8 आ गया, 6, 17. So 6 and 17. 15, 16 and 17. That is your second point. After that, 5 and 21. So 5 and 21. That is your third point. After that, 12 and 16. So 11 and 12. 12 is 16. This one. That is your fourth point. And lastly, 23, 6. 23 and 6. This one and this one. Right? So you have marked all the points. Now you need to construct a line here. And the main property of that line, the number of points above and below the line should be equal. जैसे आपकी लाइन ड्रॉ होगी, अब आप देखें लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं. तो यू कैन काउंट देम. इट्स 1, 2, 3, 4. लाइन के ऊपर 4 पॉइंट्स. लाइन के नीचे देखें 1, 2, 3, 4 एंड देयर आर 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन. दैट मीन्स कि हमारी लाइन बिल्कुल सही है. Describe the relation between the midday temperature and the number of cups of hot chocolate nasta cells. All right. तो रिलेशनशिप क्या हो रहा है? जैसे जैसे टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हॉट चॉकलेट का जो नंबर ऑफ कप्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं. Write that as temperature increases, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है नंबर ऑफ हॉट चॉकलेट कप्स डिक्रीजेस. ये आपका आपस का रिलेशन है. आगे, by drawing a line of best fit, estimate the number of cups of hot chocolate sold when the midday temperature is 17. लाइन हम बना चुके हैं. midday टेम्परेचर आपका कहाँ है? x पर है. जब ये टेम्परेचर आपका 17 है तो 15, 16 एंड 17. ये आपका 17 है. जब ये 17 है तो आपका x y पर आंसर क्या होगा? तो उसके लिए वी नीड टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन फर्स्ट. लेट मी ड्रॉ अ लाइन हेयर. 17. जब आपके पास 17 है, ये आपकी लाइन 17 पे जा रही है और ये देखेंगे ग्राफ पर ये वाई एक्सिस पे कहाँ वैल्यू देगी. ठीक है, ये आपने प्लॉट कर ली और इस वैल्यू पे जाके देखना है आपने वाई एक्सिस पर आंसर. सो दैट विल बी योर पॉसिबल आंसर. इट्स 10, 11, 12, 13, 14, 14 and 0.5. So I can say that it is 14.5. Your answer might be vary because each student is getting the different line of best fit here. तो इसका मेथड यही होगा जो मैंने आपको बताया कि यू नीड टू ड्रॉ द लाइन फ्रॉम द एक्स एक्सिस और उसका आंसर देखेंगे आप वाई एक्सिस पर. ये इसका आंसर हो जाएगा. आफ्टर दैट सिंप्लीफाई 4a माइनस बी प्लस 6b माइनस 7a. सिंपल अलजेब्रा क्वेश्चन. तो पहले मैं a वालों को साथ में लिख लूँ तो ये आएगा 4a माइनस 7a प्लस 6b माइनस b. 6b minus b it's 5b and 4a minus 7 4a minus 7a. 4a minus 7a it's minus 3a. That is your answer. M upon 2 minus 4 equals to 5. First you need to shift minus 4 on the right side. So 5 plus 4. On the left side we have m over 2. So m is equals to 5 plus 4 is 9 times 2 which is equals to 18. After that रीअरेंज टू मेक टी द सब्जेक्ट. टी को आपने बनाना सब्जेक्ट. तो 3 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. दैट विल बी 3u इज इक्वल्स टू टी प्लस 4.
We need to make t the subject, तो प्लस 4 यहाँ आएगा, माइनस 4 हो जाएगा, 3u minus 4 is equals to t. That is your answer. Moving towards the next one, expand. We need to simplify the brackets. So 3 2s are 6, y into y square, it's y cube, plus 3 5s are 15 and y. That is your answer. Next one. 100 students, 100 adults in a town were surveys about the number of emails they each received one day. The table show the result. Find the mode. The one with the highest frequency, सबसे ज़्यादा high frequency इसकी है, and the mode is 4. You got your first answer, it's 4. Calculate the mean. For mean, first you need to multiply these two brackets, so you need to find fx. 8 ones are 8, 2 tens are 20. 3 times 22 is 66, 4 times 28. So 28 times 4 is equals to 112. 112. 5 into 15, that is equals to 75. 9 6 are 54, 7 5s are 35, and 8 3s are 24, right? First, we need to find all the values of fx. Now you need to find the summation of fx. So summation of fx means that you need to add all the values. It will be 8 plus 20 plus 66 plus 112 plus 75 plus 54 plus 35 plus 24. तो पहले सबको ऐड कर लें. It will be 8 plus 20 28 plus 66 plus 112 plus 75 plus 54 plus 35 plus 24. The summation fx is 394. Alright, 394, and you need to divide it by the total frequency, which is equals to 100. So divide it by 100 and you will get the answer 3.94. Simple. After that, one of these adults is chosen at random. Find the possibility that each received fewer than 4 emails that day. अब आप ये देखें, fewer than 4 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो है वो 4 है, ठीक है ना? तो fewer than 4 का मतलब ये हुआ कि हम इन सब की बात कर रहे हैं. So we need to add 8 plus 10 18, 18 plus 22 and 28. So 18 plus 22, अच्छा 28 ऐड नहीं होगा क्योंकि fewer than 4 है, 4 काउंट नहीं किया जाएगा. So 10 plus 8 18 plus 22 40, 45. So you got your favorable outcome is 40 divided by the total you have, it's 100. So it will be 2 divided by 5. That is your answer for this part. Alright, moving towards the next one. The town has 18,000 adults. Use the survey result to estimate the number of adults in the town who received exactly 5 emails that day. Alright, 5 emails वाले आपके पास कितने लोग हैं पहले ये देखते हैं. Exactly 5 वाले हमारे पास हैं 15. ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना है. द टाउन हैज़ 18,000 एडल्ट. यूज़ द सर्वे रिजल्ट टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ एडल्ट. तो 15 तो मेरे पास आ रहे हैं वो एडल्ट जिन्होंने एग्जैक्टली 5 ईमेल किए. आउट ऑफ टोटल कितने हमारे पास 100, और ये बात कर रहा है 18,000 एडल्ट में कितना एस्टिमेट करना है आपने. ठीक है, सो यू नीड टू सिंप्लीफाई इट. Simplification, you will get 2700. That is your answer. All right, I hope that it clears. Next question, number 5. Use set notation to describe the subset shaded in the Venn diagram. कौन सा शेड हुआ है आप देख सकते हो कि A और B शेड नहीं हुआ. That leads to A union B but with the complement. ये आपका आंसर आ गया. For second part, we have universal set. P is a factor of 36. Now, how many numbers are factor of 36? That leads to 2, 3, 4, 6, 9 and 12. These are the factors of 36. Multiple of 4. Multiple of 4 is 4, 8 and 12, right? After that, it says R is from 3 to 6, so it will be very simple. 3, 4, 5 and 6. Now, complete the Venn diagram. You need to place all the numbers first here. So in P section, I have 2, 3, 4, 6, 9 and 12. It's in P. In Q, I got 4, 8 and 12, and in R, I got 3, 4, 5, 6. At first, we need to observe कि कोई ऐसा नंबर जो तीनों में आ रहा. So we got 4, we got 4 and we got 4. तीनों में आ रहा है. That means 4 should be written in the middle. तो ये 4 तो आपने यहाँ से रिमूव कर दिया. ऑलराइट, अब ये देखें कि यार P में और Q में क्या कॉमन आ रहा है. So P में और Q में मुझे 12 नज़र आया और तो कुछ कॉमन नहीं है. तो P और Q का कॉमन आ जाएगा आपके पास सिंपल 12.
and you need to remove that 12 from these two. Similarly, from Q and R, कोई नंबर कॉमन नहीं है, एज इट इज रहेगा. फ्रॉम P एंड R वी गॉट 3 कॉमन, तो आप 3 यहाँ से आप रिमूव कर देंगे दोनों में से. और तो कुछ कॉमन नहीं, 6 भी कॉमन है, राइट. तो यू गॉट 2 नंबर्स कॉमन, 3 एंड 6. तो आपने 6 को भी यहाँ से रिमूव कर दिया. ऑलराइट, नाउ दैट इज योर फाइनल, बट बिफोर दैट यू नीड टू प्लेस ऑल द नंबर्स जो आपकी यूज नहीं वो बाहर आएंगे. कौन से नंबर यूज नहीं हुए? 2, 3, 4, 5, 6 भी आ गया, 7 नहीं आया. सो 7 बाहर आएगा, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 नहीं आया, 10, 11 नहीं आया, 12 आ गया, 13, 13 तो है नहीं 12 तक का. तो ये आपके वो नंबर्स हैं जो आपके आउटसाइड द सर्कल्स आएंगे. लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ P इंटरसेक्शन Q यूनियन R. P इंटरसेक्शन Q यूनियन R कॉम्प्लीमेंट. ऑलराइट, तो ऐसे आपके पास दो ही एलिमेंट्स हैं जो कि P में मौजूद हैं. इट्स 2 एंड 9. ये आपके दो नंबर्स हैं जो P में है लेकिन Q और R में नहीं है. तो Q और R को पूरा हटा दें, बचेगा P आपके पास, दैट इज 2 एंड 9. फाइंड n ऑफ P यूनियन Q एंड डिफाइन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो P और Q में कितने आ रहे हैं? इफ यू नीड टू काउंट देम इट विल बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So there are 7 elements present in P union Q. ये आपका आंसर आ गया. यूज सेट नोटेशन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट. नल सेट कौन सा है? नल सेट आपके पास है ये वाला. ऑलराइट, यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है तो दैट इज द नल सेट. और नल सेट को आप क्या बोलोगे, किस तरह डिफाइन किया जाएगा इसको? दैट इज P कॉम्प्लीमेंट Q इंटरसेक्शन R तो है मेरे पास, उसमें P नहीं है. सो इट्स वेरी सिंपल, इट विल बी Q इंटरसेक्शन R intersection P complement. That will be your answer. Further, it's question number 6. PQR is an isosceles triangle with PR equals to QR. P is the point 15 and Q is the point 51. Angle PRQ is not a right angle triangle. Find the coordinates of one possible position of R. You may use a grid to help you. तो पहले हम ग्रिड पे क्या करते हैं, पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं. P क्या है मेरे पास? 1,5. तो इट्स 1 एंड 1, 2, 3, 4, 5. ये एक पॉइंट है मेरे पास P का. ऑलराइट, एंड Q इज व्हाट? 5, 1. तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 1. Q ये मेरे पास आ गए 2 पॉइंट, राइट. अब मुझे R नहीं पता, लेकिन मुझे ये मालूम है कि जो R है वो 90 डिग्री पर नहीं है. एंड वी हैव द आइसोसेलेस ट्राइंगल दैट इज PR इक्वल्स टू QR. तो फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. अगर मैं कहूँ कि यार मेरा एक पॉइंट है, लेट सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, कंफर्म आंसर नहीं है. मैं कहूँ मेरा एक पॉइंट है R, ये एक पॉइंट R ले लेते हैं, ठीक है ना. अगर मैं Q के और P के बॉक्सेस काउंट करूँ तो R के Q के बॉक्सेस कितने हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 1, 2, 3, 4. तो ये एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा होगा, बट यहाँ पर 90 की बन रहा होगा. उसने कह दिया कि नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो R यहाँ नहीं होगा, लेकिन आपको ये समझ में आ गया कि आपने इसके बॉक्सेस कैसे काउंट करने हैं. ऑलराइट, तो अब हम लोग एक पॉइंट ऐसा लेते हैं, लेट सपोज मैं आपसे कहूँ कि यार ये एक पॉइंट है मेरे पास, इसको लेते हैं. अब पहले हम इसको वेरीफाई करते हैं Q से एंड P से. अगर मैं Q से बात करूँ तो कितने मेरे पास पॉइंट्स हैं Q के? Q ये था ना, इट विल बी 1, 1, 2, 3. X पर 3 है और Y पर कितना है? 1 है. तो Q के X 3 और Y पर 1 है. इसी तरह मैं P को देखता हूँ, P का कितना है? X पर 1 है और Y पर 3 है. मतलब दोनों के डिस्टेंस हमारे पास इक्वल आ रहे हैं. हमने Q से देखा तो Q से हमें नज़र ये आया कि 3 स्टेप ऑन लेफ्ट एंड 1 स्टेप अप. ये आया Q से पॉइंट R जो हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है. और अगर हम P से बात कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं 1 स्टेप ऑन राइट X पर और 3 स्टेप हम जा रहे हैं डाउन. ऐसे ही जा रहे हैं ना. तो आप ये नंबर्स को देखो, नंबर्स आर सेम और डिस्टेंस में हमारे पास स्क्वायर होता है तो नेगेटिव वैल्यू का हमारे पास मसला नहीं होगा. हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो पॉइंट R होगा वो इस 2,2 कोऑर्डिनेट पर होगा, क्योंकि यहाँ से P और Q दोनों की लेंथ हमारे पास इक्वल आ रही है. ऑलराइट, ये आपके पास आ रहेगा पॉइंट R एंड यू नीड टू कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल और व्हाट. तो अगर आपने ट्राइंगल बनाना भी है तो आप जस्ट इन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर लोगे एंड यू विल गेट द आइसोसेलेस ट्राइंगल PQR, जिसमें आपके पास लेंथ ऑफ PR and QR they are equal. तो ये आपका आंसर आ गया. नेक्स्ट वन, here are the equation of the 5 curves. Y equals to 2 minus x square, x cube minus 2, x square plus 2x minus 8 and 2 more. Sketches of 3 of these curves are drawn below. Write the correct equation underneath each sketch. Alright, तो आपने ये बताना है कि कौन से स्केच की कौन सी इक्वेशन है. तो हमारे पास स्क्वायरिंग का जो कर्व होता है वो हमारे पास यू शेप बन रहा होता है.
तो ये भी स्क्वायर का हो सकता है, ये भी स्क्वायर का हो सकता है। अब कौन सा किसका होगा ये हम देखते हैं, ठीक है। अगर लेट सपोज कि मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है ना, इसकी स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर x को 0 पुट कर दूँ तो y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। अगर आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो 2 माइनस 0 क्या होगा, 2 हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो इसका जो y एक्सिस है दैट इज़ ऑन द ओरिजिन, तो ये इसका नहीं हो सकता। और अगर मैं इसको देखूं तो यस, यहाँ पे ये हो सकता है, दैट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि ये 2 पे कट कर रहा है। लेकिन उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर y को 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास x के आंसर क्या आएंगे। लेट सपोज मैंने कहा y की जगह मैंने 0 प्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2। ये इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। दिस पार्ट इज y इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपने इसको वेरीफाई कर दिया। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 2, राइट। तो मुझे नज़र भी आ रहा है कि ये ग्राफ मेरे एक्सिस को कट कर रहा है 2 पॉइंट्स पे, तो ये इसका ग्राफ हो सकता है। तो ये वाली तो इक्वेशन हमारी हो गई यूज़। अब आते हैं इन दो पर। ये जो ग्राफ है हमारे पास, दैट ग्राफ इज अ क्यूबिक ग्राफ, ऑलराइट। ये तो क्यूबिक ग्राफ है। अब क्यूबिक ग्राफ की हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक्स क्यू माइनस 3x एंड एक्स क्यू माइनस 2। अगर मैं x की जगह 0 पुट कर दूं, ठीक है ना, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस इक्वेशन। अगर मैं कहूं कि यार x की जगह 0 पुट करें, तो अगर आपने x की जगह 0 पुट किया सो यू विल गेट y 0। जबकि यहाँ पर तो y इंटरसेप्ट हमारी नेगेटिव वैल्यू, और नेगेटिव वैल्यू मुझे यहाँ नज़र आ रही है। दैट मीन्स दिस ग्राफ इज y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2। फर्स्ट वाला। अच्छा, फर्स्ट वाले में हमारे पास स्क्वायरिंग की अब ये इक्वेशन बाकी है, ठीक है ना। इसमें अगर मैं x की जगह 0 पुट करूँ तो 0 माइनस 0 y 0 आ जाएगा, और मुझे भी नज़र आ रहा है कि मेरी इक्वेशन में y इंटरसेप्ट 0 आ रहा है। दैट इज़ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ये आपके 3 आंसर्स आ गए इसके, ठीक है। फर्दर, A is the point minus 1, minus 5 and B is the point 3, 3. Find the equation of the line perpendicular to AB which passes to the midpoint of AB. So at first we need to find out the midpoint of AB, that is equals to x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2. So minus 1 plus 3, it will be 2. 2 divided by 2, 1, and it is minus 1. You got the midpoint, right? Now you need to find out the gradient of AB. So AB gradient is y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So 3 minus minus 5, it will be 8 divided by 4 reaches to 2. ऑलराइट, ये ग्रेडियंट आपका नहीं है क्योंकि आपके पास यहाँ पर है परपेंडिकुलर। For perpendicular, you need to flip and change the sign. So that will be equals to minus 1 upon 2. That will be your gradient. For the equation of line, we have y is equals to mx plus c. To find out the value of c, you need to place the value of x and y in these two midpoint, right? So value for y is negative 1 is equals to gradient is negative 1 over 2. X is 1 and plus c. So you will get minus 1 equals to minus 1 over 2 plus c. Shift minus 1 over 2 on the left side. So minus 1 plus 1 over 2 equals to c. And LCM, that will be minus 2 plus 1 is equals to c. And c is equals to minus 1 over 2. For the final answer is y is equals to minus 1 over 2x minus 1 over 2. That will be your equation of perpendicular bisector. Further, a rectangle field measures 30 by 45. Calculate the perimeter. It says that you have a rectangle and the dimensions we have it's 30 by 45. For perimeter, we know that rectangle all sides, all opposite sides are equal. So you will get 30 plus 30 plus 45 plus 45. 30 plus 30 it's 60, 45 plus 45 it's 90. When you add them you will get 150, and that is the perimeter. Calculate the length of the diagonal. So you have a rectangle, right? Diagonal means that you need to find out this. Since it's a rectangle, though we have a right angle triangle, it's 45 and 30. So we can use Pythagoras to find the value of diagonal here. So that will be L is equals to under root of 45 square plus 30 square. Alright, so 45 square plus 30 square and under root of it. So you will get 54.08. That will be your answer. I'm sure the sketch of a triangle PQR. All lengths are given in centimeters. Find the value of A.
So it's a triangle, not a right angle triangle, so you need to apply law of sine or cosine. According to the data, we need to apply law of cosine here. So the side we have it's a plus 4 whole square is equals to a square plus 11 square minus 2 times a times 11 times cos 60. That is law of cosine. Simplify, so a square plus 11 square is 121 minus 22, a cos 60 is 1 over 2. 2 times 1, 2 times 11, so you get a square minus 11a plus 121. On the left side, you need to expand with an identity, that is a square plus 2ab plus b square. I'm going to write down the identity here. A plus b whole square is equals to a square plus 2ab plus b square. That is the identity we had applied here. Alright, so a square simplifies, so you will get 11a on the left side. 11 plus 8, it's 19a is equals to 121 minus 16. So simplify, 121 minus 16 and divided by 19, so you will get 5.52. So a is equals to 5.526. So 5.526 or 5.53. That is your answer for A. Next one. Diagram shows a sketch of quadrilateral ABCD. All lengths are given in centimeters. The area of the quadrilateral ABCD is 70. Calculate DAB. So you need to find out the angle DAB. All right, and you have the area of the quadrilateral. At first, I need to find the area of triangle. So area of triangle ACD. It's a triangle 1 over 2 base into height. That means 10 times 8. So 2 ones are, 2 fives are, and 5 eights are 40. That means the area of this triangle is 40. So if you subtract area of triangle from area of quadrilateral, that means we are subtracting 70 and 40. So the answer is 30. What is 30 here? 30 is basically the area of this triangle. Alright, you got the area of this triangle, and that is 30. So you need to apply the working formula for area of triangle, that is equals to area is half a, b and sine c. So area is known, it's 30, 1 over 2. Lengths are given, it's 8 times 9, and the angle we are looking for, this angle is x. Alright, so that part is x. So you need to simplify, so 2 ones are 2 and 2 fours are 8, 4 nines are 36, sine x equals to 30. We can find out the angle x here. So 30 divided by 36 and inverse of sine. So you will get, oh sorry, it's radian mode. Make sure that you have calculators in degree mode. So let me first convert my degree. So that leads to 30 over 36 and inverse of sine. So you will get 56.4. So x is equals to 56.44 degrees. Alright. Similarly, I need to find out this angle as well, y, and for y I can apply simple trigonometry. So for y it will be 10y is equals to opposite divided by adjacent. 51.34, so y is 51.34. So you got both of the angles. Now for the final part you need to add these two. So angle DAB is equals to 51.34 plus 56.44. So 51.34 plus 56.44, and you will get 107.78. Alright, so that is your angle for DAB, and that is your. Alright class, moving towards the next one. It's question number 8 from the topic functions. It says if f of x is 3x minus 5 and g of x is 4x plus 4 upon 3, you need to find the value of f of minus 2. अब ये बात आपको पता है कि जो कुछ ब्रैकेट में लिखा होता है वो बेसिकली हमारे पास x की वैल्यू होती है, ठीक है। तो आपके पास अपने f of x में जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर अब आप नेगेटिव 2 प्लेस कर दो। सो वी हैव f of x इज इक्वल्स टू 3 times x minus 5, right? Instead of x, we need to write the value, that is negative 2. So I'm just using the brackets here. So it will be negative 2 and negative 2.
If you simplify, you will get -6 -5 that is equals to -11. ये आपका आंसर. Find the largest integer satisfying f of x greater than 3g of x. So f of x greater than 3 times g of x. Placing the value for f of x, it's 3x minus 5 greater than 3 times of gx. It is 4x plus 4 divided by 3. Cancel. So now it is 3x minus 5 greater than 4x plus 4. We need to gather x on the one side, so I'm going to shift it on the right side. So 4x minus 3x, it will be x, and -5 -4. So you got x, ये जो साइन है ये लेस देन का है, सो x इज लेसर देन -9. तो अब आपके पास लेस देन से छोटे नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? इफ इट सेज x इज लेसर देन -9, तो द स्मॉलर नंबर इज x इज इक्वल्स टू, x कैन बी -10, x can be -11, x can be -12 and vice versa. इन सब नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है मेरे पास? -10. So we need to find the value for the largest integer. So the largest integer is -10. f of x is equals to g of 3x minus 5. So f of x is what? It's 3x minus 5 is equals to, ये लिखा हुआ है g of 3x minus 5. याद रखें कि जो कुछ ब्रैकेट में लिखा होता है वो बेसिकली आपके पास x की वैल्यू होती है. तो जहाँ पर भी मेरे पास x होगा वहाँ पर अब मैं प्लेस कर दूंगा 3x minus 5. gx का फंक्शन क्या है? 4x plus 4 डिवाइडेड बाई 3. ये मैंने फंक्शन ये वाला प्लेस किया है, जहाँ पर x था मैं ब्रैकेट लगा दिया, और x की जगह आई नीड टू यूज़ दैट वैल्यू 3x minus 5 जो आपको दिया हुआ है. ठीक है ना? ये हमने इक्वेशन बना दी. अब हमने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है. 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है हमारा, कि मल्टीप्लाई हो जाएगा. इट विल बी 3 टाइम्स ऑफ 3x -5 इज इक्वल्स टू 4 को मल्टीप्लाई किया, 4 3s are 12x माइनस 4 5s are 20 प्लस 4, 3 3s are 9x minus 3 5s are 15 is equals to 12x minus 20 plus 4, it's minus 16. So minus 16 उधर जाएगा, it will be plus 16. So minus 15 plus 16 is equals to 12x. When you shift 9x on the right side, it will be a -9x. So minus 15 plus 16, it's 1 is equals to 3x, and you got the value for x is equals to 1/3. ये आपका आंसर आ गया. And the next one, it says g inverse of x is equals to 5. अब ये जो सवाल है ना, इसको सॉल्व करने के देखें हमारे पास एक बड़ा आसान मेथड ये है. इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पहले उसका आंसर कीजिएगा, फिर ये आंसर करवा दूँगा. मान लीजिए अगर लिखा होता है हमारे पास sin x इज इक्वल्स टू 1/2, ये लिखा हो, और मैं आपसे कहूँ कि x निकालें, तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं साइन अगर वहाँ जाएगा तो दैट विल बी अ साइन इनवर्स. ऐसे ही हो जाएगा ना? साइन इनवर्स 1/2 एंड इट इज इक्वल्स टू x, एंड यू कैन यूज दैट साइन इनवर्स फ्रॉम योर कैलकुलेटर टू फाइंड द वैल्यू फॉर x. सिंपल है. अगर मैं साइन इनवर्स को दोबारा इधर लेकर आऊँगा, तो दैट विल बी साइन x इज इक्वल्स टू 1/2. ये रिलेशन समझ में आ रहा है कि हम कैसे कर रहे हैं? इस चीज़ को बेटा हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. अब कैसे करेंगे ये देखें. इट सेज g इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 5. ऐसे ही है ना? अगर मैं इनवर्स को राइट पे लेके जाऊँ तो ये हो जाएगा मेरे पास ओनली g ऑफ 5. इनवर्स था, राइट पे जाएगा सिर्फ g हो जाएगा. बिल्कुल इसी तरह जब यहाँ पर इनवर्स था, ये लेफ्ट पर आया था, सिंपल साइन हो गया था, बिल्कुल इसी तरह. और यहाँ बचा कौन? यहाँ बचा x इज इक्वल्स टू g ऑफ 5. अब ये क्या बता रहा है आपको? ये आपको बता रहा है कि आप फंक्शन g का लेंगे, और वहाँ जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर आप सिंपल 5 प्लेस कर दोगे. ठीक है? तो gx का फंक्शन क्या है हमारे पास? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर. वी हैव g ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3. ये आपका g ऑफ x है. तो g ऑफ 5 क्या हो जाएगा? g ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 4, जहाँ पर x है वहाँ पर आप 5 प्लेस कर दो, डिवाइडेड बाई 3. 4 5 20, 24 अपॉन 3 दैट इज इक्वल्स टू 8. ये आपका आंसर आ गया. नेक्स्ट वन, यू नीड टू शो दैट द स्लांट हाइट इज 8, और आपको दिया हुआ क्या है? आपको रेडियस मालूम है, और आपको दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया. देखिए टोटल को उसने हाईलाइट किया हुआ है, टोटल. अब यहाँ पर कौन का जो टोटल सरफेस एरिया होगा उसमें कर्व्ड होगा विच इज़ पाई आर एल, और बेस एरिया भी तो होगा दैट इज़ पाई आर स्क्वायर. ये आपका होगा टोटल सरफेस एरिया. ठीक है? अब टोटल आपको दिया हुआ है इट्स 84 पाई इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर पाई कॉमन निकाल लेता हूँ. पाई और
चलें आर भी कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बचेगा मेरे पास एल प्लस आर, ऐसे हो जाएगा। पाई कॉमन निकालने की वजह ये थी ताकि पाई से मेरा पाई कैंसिल हो जाए, ठीक है बेटा। अब मैं सिर्फ वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ, 84 इज इक्वल्स टू रेडियस आपको दिया हुआ है 6 एंड एल प्लस 6, ये 6 आगे डिवाइड हो जाएगा, तो 84 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज इक्वल्स टू 14, 14 इज इक्वल्स टू एल प्लस 6, 6 मारे के माइनस हो जाएगा, सो एल इक्वल्स टू 14 माइनस 6, एल इज इक्वल्स टू 8, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, calculate the volume of the cone, very simple, you need to apply the working formula. Volume is equals to 1 upon 3 pi r square h, that is the formula, right? आपको यहाँ पर height नहीं पता, if I'm going to mention the height in the diagram, that is your height. You can find out your height by using Pythagoras. So for height I'm going to show you working here. So that will be equals to L square equals to 6 square plus h square. Height, length is 8 square, 6 square on the left side it will be negative 6 square equals to h square. 64 minus 36 is equals to h square. 64 minus 36, it is equals to 28. So h square is equals to 28. We need to apply root on both sides. So h is equals to under root of 28 is 5.3. So the height is 5.3. Once you have the value of the height, you can find out the value for volume. It is equals to 1 over 3 pi. Radius is what? Radius is 6 square and height is what? Height is 5.3. So 5.3 times 6 square is 36 times 3.142, that is your pi, and divided by 3. Simplify it and you will get the value for volume. It's 199.5. 199.5 centimeter cube, that is your volume. Easy question. After that it says a similar cone. अभी तो similar का word होता है ना, that is a keyword, मतलब यहाँ पर आप similar and congruent वाला जो टॉपिक होता है वो यूज कर सकते हो। A similar cone has a total surface area of 47.25, find the radius। अब जब क्योंकि similar cone हो गया तो इससे हमारा एक फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा, एरिया 1 डिवाइडेड बाय एरिया 2 इज इक्वल्स टू लेंथ 1 डिवाइडेड बाय लेंथ 2 होल स्क्वायर, ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, वैल्यू प्लेस करनी है। आ सिमिलर कोन है द टोटल सरफेस एरिया 47.25 पाई, तो मैंने ऊपर लिख दिया इसका 47.25 पाई, और एक एरिया आपको दिया था क्वेश्चन में, दैट वाज 84 पाई। तो जो दूसरा एरिया था वो था 84 पाई, जिसका एरिया 84 पाई था उसका रेडियस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो कितना है हमारे पास देख लेते हैं। इट इज़ 6, जिसका आपको एरिया दिया हुआ है उसका रेडियस 6 है, तो यहाँ 6 आ जाएगा और ये आपको फाइंड आउट करना है, सो दैट इज़ योर x। सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा जी, पहला काम तो ये हुआ कि पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर 36, और इसको मैं अभी ऐसे ही लिख रहा हूँ 47.25 डिवाइडेड बाई 84। अब इसको हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल क्या काम करना है हमको, 36 डिवाइड हो रहा है हमारा, क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं ये कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36 मल्टीप्लाई बाय 47.25 एंड डिवाइडेड बाय 84। सिंपल, अब सॉल्व कर लेते हैं। 36 मल्टीप्लाई बाय 47.25 एंड डिवाइडेड बाय 84, और जो आंसर आएगा उसको हम ले लेंगे अंडर रूट, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर चल रहा है, तो ये आ जाएगा आपके पास 9/2। x इज इक्वल्स टू 9/2, दैट इज इक्वल्स टू 4.5, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम सर्कल प्रॉपर्टीज। A, B, C and D on the circumference of a circle center O, OBD is a straight line, ये इंपॉर्टेंट बात होती है, एंड एंगल ABD इज 130, आपको मेंशन किया हुआ है ABD आपके पास 130 है। फाइंड एन एंगल ACB, गिव अ रीजन फॉर ईच स्टेप ऑफ योर वर्किंग, मतलब जो जो हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे ना हमें सब वो मेंशन करनी होगी, ठीक है। जो आपको एंगल निकालना है वो एंगल है आपके पास ये वाला एंगल, ठीक है ना। अब मुझे अगर ये एंगल चाहिए ना, तो इसके लिए मुझे किसी तरह ये सेंटर का अगर एंगल मिल जाएगा तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो पहली बात, मेरे पास लेट सपोज मैं कहता हूँ कि यार ये एंगल मेरे पास A है, लेट सपोज, तो मैं A निकाल सकता हूँ। कैसे आएगा, A इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130। स्ट्रेट लाइन का एंगल आपके पास 180 होता है, तो आपने 180 में से माइनस किया तो ये आ रहेगा आपके पास 50 डिग्री, दैट इज़ योर एंगल A। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम ये कह सकते हैं एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन
इज़ 180 डिग्री। ये आपकी पहली बात हो गई, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात, अगर ये वाला ए होगा तो ये भी आपके पास ए होगा। ऐसा क्यों? इसका रीज़न लिख रहा हूँ मैं। अब मैं ये कहूँगा कि ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, और ये कहने की वजह क्या है? क्योंकि ये दोनों हमारे पास रेडियस हो जाएंगे, ये दोनों हमारे पास रेडियस हो जाएंगे। अब ये ट्राइंगल बन गया। नाउ यू कैन सॉल्व द ट्राइंगल हेयर। अब मैं ये कह सकता हूँ दैट ए प्लस ये जो एंगल ओ है इसको मैं कह सकता हूँ एंगल बी ओ ए। ये बी ओ ए कौन सा एंगल है? ये इसकी बात की जा रही है, ठीक है। बी ओ ए इज इक्वल्स टू 180। यहाँ से आपको एंगल बी ओ ए मिल सकता है क्योंकि ओ ए आपके पास ए आ चुका है। ए इज 50 प्लस एंगल बी ओ ए इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल बी ओ ए 50 100 हुआ, हमारे के माइनस किया तो ये आ रहेगा आपके पास सिंपल 80 डिग्री। दैट इज योर सेंटर एंगल। ये आ गया आपके पास, ठीक है जी। अब जब ये एंगल आपके पास आ गया, अब ये प्रॉपर्टी कि जो एंगल आपका सेंटर पे होता है उसका हाफ आपका सरकमफेरेंस पे होगा। तो अब आप सिंपल आंसर लिखोगे एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 40। और इसका रीज़न क्या आएगा? इसका रीज़न ये होगा आपके पास एंगल एट सेंटर इज 2 टाइम्स एंगल एट सरकमफेरेंस। ये इस प्रॉपर्टी का नाम भी है, ये आपका रीज़न भी हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट वन। P and Q are points on circumference of a different circle. Center O, PR and QR are tangents of the circle to the circle at P and Q. OP is 8 and POQ is 130. सबसे पहले आपको ये पता हो भाई टेंजेंट की प्रॉपर्टी होती है कि टेंजेंट और रेडियस 90 होते हैं। तो मैंने ये पहले इसको प्लॉट कर दिया, ठीक है। हमें निकाली है लेंथ ऑफ पी आर। बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ फ्रॉम ओ टू आर तो इस लाइन की खास बात ये होगी कि ये हमारा जो एंगल था 130 ये इसको एग्जैक्टली हाफ कर देगा। तो हम कर लेंगे भाई 130 डिवाइडेड बाई 2 65। ये आपका आंसर आ गया। अगर इस ट्राइंगल को देखें क्योंकि यहाँ 90 आ चुका है, इसका मतलब है कि हमारी ट्रिग्नोमेट्री एक्टिव हो चुकी है, ठीक है। अब मैं यहाँ ट्रिग्नोमेट्री आराम से यूज़ कर सकता हूँ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी आर। सो लेट्स लेबल इट एज एक्स। वी नीड टू अप्लाई 10 हेयर, सो इट विल बी 10 65 is equals to opposite divided by adjacent. So 10 65 ये 8 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा टाइम्स 8, so you will get the value 17.15. x is equals to 17.15. ये आपके पास x का आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ क्वाड्रिलेटरल OPRQ दैट इज शेडेड। अच्छा जी, अब पहला काम तो ये करना है कि आपको शेडेड एरिया निकालना है, ठीक है ना। अब शेडेड एरिया मैं कैसे निकाल सकता हूँ? ये मेरे पास, अब देखिएगा गौर से, ठीक है ना। ये मेरे पास एक ट्राइंगल बन रहा है। ये ट्राइंगल नज़र आया आपको? आई होप कि नज़र आ गया होगा, ठीक है ना। ये बन गया एक ट्राइंगल मेरे पास। उस ट्राइंगल में से देखें, अगर मैं इस सेक्टर को माइनस कर दूँ तो जो एरिया मेरे पास आ रहा है वो शेडेड एरिया बच रहा है, और उस एरिया को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि ऊपर का और नीचे का एरिया सेम है। तो ये हमारी वर्किंग स्ट्रेटेजी हो गई। अब हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे? तो पहला काम तो मैं ये करता हूँ, मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। क्योंकि 90 है तो बेस और हाइट मिल गया हमें, एक 8 है और एक्स हम निकाल चुके हैं 17.15। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 17.15 इंटू ये 2 1s ऐसे हो जाएगा, 2 1s 2 4s, इसको डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास एरिया आ गया 68.62। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 68.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। वो क्या आएगा? एंगल डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। किसी को अगर याद नहीं है तो लिख रहा हूँ एंगल, एंगल लिखता हूँ यहाँ पर मैं इसको। ये लिख रहा हूँ मैं बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर इट इज़ इक्वल्स टू एंगल डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ये अप्लाई किया, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दी मैंने, तो उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं डायरेक्ट। 65 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई एंड मल्टीप्लाई बाय 8 स्क्वायर इज 64, दैट इज इक्वल्स टू 36.3। ये आ गया 36.3 एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा जी, अब मैं निकालता हूँ एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। सो एरिया ऑफ शेडेड, ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल 68.62 माइनस 36.3। तो इसको हम क्या करते हैं, 68.62
माइनस आंसर, ये आ गया 32.32। 32.32 जो आपका आंसर आया तो खाली ऊपर वाले पार्ट का है ना, ये तो खाली इस वाले पार्ट का आया, जो ऊपर होगा वही नीचे होगा, सो आई नीड टू मल्टीप्लाई दैट आंसर बाय 2, तो आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। द शेडेड एरिया इज 64.36, 64.64 आई थिंक, 64.64, चलें ठीक है। ये जो आपका एरिया है ना, ये आपका आया शेडेड एरिया। अभी उसने इसका आंसर नहीं पूछा था, उसने पूछा था आपसे परसेंटेज। अब परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करें, बहुत सिंपल सी बात है भाई, हम निकालेंगे पहले परसेंटेज की बात हो रही है, ठीक है। परसेंटेज इज इक्वल टू शेडेड एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो आपके पास है OPRQ, जिसमें बेसिकली 2 ट्राइंगल बन रहे हैं वो है आपके पास, ठीक है, और टाइम्स 100। ये आपका सिंपल सा आ रहेगा वर्किंग फार्मूला एरिया परसेंटेज निकालने के लिए। अब शेडेड एरिया जो आपने निकाला है वो आप टोटल का निकाल चुके हो, दैट इज 64.64, ये पूरे का शेडेड एरिया आ रहा है ऊपर नीचे मिला के, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अगर हम देखें तो आपको नजर आएगा कि यार एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बेसिकली 2 ट्राइंगल है, तो मैं ट्राइंगल के एरिया को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा दैट विल बी द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ट्राइंगल के एरिया कितना आया था हमारे पास 68.62, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ 68.62 एंड टाइम्स 100। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, 64.64 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 68.62 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, so you will get 47.09 or 47.1, that will be your percentage। ये आपका आंसर आ रहा है परसेंटेज ऑफ द शेडेड एरिया। Next one, from the topic probability. A bag contains 12 balls. There are X black balls in the bag and the other balls are white. 2 balls are taken at random from the bag without replacement. Complete the tree diagram. Alright, तो ये आपको उसने एक बना के दिया हुआ है। अगर मैं ब्लैक के बाद ब्लैक निकालूंगा तो जाहिर बात है ब्लैक एक मेरे पास कम हो जाएगी, लेकिन उस ब्लैक के कम होने से वाइट बॉल थोड़ी कम होगी। तो पहले में तो आपकी वाइट जो है वो एज इट इज रहेगी 12 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 11, ये आपका पहले का सेम रहेगा, ठीक है। अगर आप वाइट निकालोगे तो वाइट का इम्पैक्ट वाइट पर आएगा, वाइट से आपका ब्लैक कम नहीं होगा, तो ब्लैक अगर x था मेरे पास तो ये हो जाएगा सिंपल x डिवाइडेड बाय 11। अब आते हैं यहाँ पर, अगर आप वाइट निकाल लो और वाइट के बाद दूसरी भी वाइट निकल रही है, इसका मतलब है कि अब एक बॉल आपकी कम हो जाएगी। अच्छा ठीक, अब देखें आपके पास जो x है वो ब्लैक है, सही है, तो अगर मेरे पास x तो कम नहीं होगी मेरे पास, तो ये वाली बॉल्स कम होंगी ना, तो दैट विल बी 11 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 11, ये आपका प्री कंप्लीट हो गया। Next one, find an expression for the probability of taking one ball of each color. Write your answer as a single fraction in terms of x. Alright, it says one ball of each color. अब आपके पास ऑप्शन क्या होगा भाई, ब्लैक के बाद वाइट हो सकता है या फिर वाइट के बाद ब्लैक हो सकता है, वन बॉल ऑफ ईच कलर का, ठीक है। अगर ब्लैक के बाद वाइट है तो पहला ब्लैक क्या है आपके पास, इट्स x ओवर 12 मल्टीप्लाई बाय वाइट की पॉसिबिलिटी क्या है 12 माइनस एक्स ओवर 11, ये पॉसिबल हो सकता है, या फिर पहला वाइट हो दैट इज 12 माइनस एक्स ओवर 12 और उसके बाद आपके पास आ जाए ब्लैक एक्स ओवर 11, ये आपका बनेगा एक्सप्रेशन। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है बेटा, तो ये आ रहेगा मेरे पास x इंटू 12 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 132, ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर लिया आपने, ये आ जाएगा x इंटू 12 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 132। सिंपल आपने दोनों को ऐड करना है, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 times of x times 12 minus x divided by 132, 2 ones are 2 and 2 66 are, that will be equals to x times 12 minus x divided by 66, ये आपका आंसर आ गया। अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हुई कि यहाँ पर 2 कैसे आया, तो समझे बेटा कि ये पूरे ब्रैकेट्स दोनों सेम है एग्जैक्टली, ऑलराइट। तो मान लिया मैं कहता हूँ कि यार मेरे पास y लिखा है, तो y प्लस वाई क्या होगा, इट विल बी 2y, और y की जगह मैं समझो ये मैंने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो इसलिए मेरे पास ये 2 आया था कि दोनों एक्सप्रेशन को हमने ऐड कर दिया। नेक्स्ट वन, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ब्लैक इज 14/33, फॉर्म एन इक्वेशन इन x एंड फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। ऑलराइट, अब ब्लैक के बाद अगर ब्लैक आए तो आप ये देखें पॉसिबिलिटी क्या होगी, x अपॉन 12, एक होगी x अपॉन 12 मल्टीप्लाई विद x माइनस 1 अपॉन 11, x अपॉन 12 इंटू x माइनस 1 अपॉन 11, x over 12 into
x माइनस 1/11। ये आ गई दोनों ब्लैक, और इसकी जो पॉसिबिलिटी है आपके पास, इट्स 14/33। ये आपकी अब सिंप्लीफाई होकर इक्वेशन बनेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 12 टाइम्स 11 इज 132 इज इक्वल्स टू 14/33। नंबर देखते हैं, क्या पता क्रॉस मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाए। 132 टाइम्स 14 एंड डिवाइडेड बाई 33, ये आ रहेगा 56। इसको मारा के ले गया तो आंसर आएगा मेरे पास 56। ये 56 यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट पर, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56 इज इक्वल्स टू 0। अब आपके पास इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 8 और 7 बनेगा मिडिल टर्म, प्लस नहीं, प्लस का नहीं आएगा, 8 माइनस का आएगा, माइनस का 8x प्लस का 7x। याद रखिएगा कि जो साइन यहाँ पर होगा x के पास, वो आपको चाहिए होगा बड़े नंबर के साथ, ठीक है। तो अगर x यहाँ पर मेरे पास माइनस है तो माइनस 8x होना चाहिए था। माइनस 56 इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लेंगे बेटा यहाँ पर, x माइनस 8, यहाँ 7 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 8 कॉमन आया, बचा कि आपके पास x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। सो यू गॉट x इज इक्वल्स टू 8 एंड यू गॉट x इज इक्वल्स टू -7। ऑब्वियसली कि यहाँ पर हमारा आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता, हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, नेगेटिव वॉल्स थोड़ी होंगी हमारे पास। तो आपका जो यहाँ आंसर कंसीडर किया जाएगा दैट इज x इज इक्वल्स टू 8। ऑलराइट बेटा, आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको। Next one, question number 12. A is a point, B is a point, find AB. You need to find out the vector AB, right? So it's very simple. A क्या है? A basically मेरे पास है OA. OA मेरे पास क्या है? OA मेरे पास है 2 and 3. What is OB? OB आ जाएगा मेरे पास, सिंपल है, 3 और -5, ठीक है ना। ये आपसे कह रहा है AB। पहले आपको क्या आना चाहिए? यू नीड टू राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। ए बी इज व्हाट? ए बी इज ओ बी माइनस ओ ए। ऑलराइट, अब ओ बी क्या है आपके पास? इट्स 3 एंड -5 माइनस ओ एस 2 एंड 3। सिंप्लीफाई किया आपने, 3 माइनस 2 इज 1 एंड -5 माइनस 3 इट्स -8। तो ये आपका आंसर आ गया 1 और -8, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। बी सी आपको दिया हुआ है, तो बेटा बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने बी और सी के वेक्टर को ब्रेक करना है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। ये आ जाएगा ओ सी माइनस ओ बी, जो हमने पार्ट ए में काम किया। आपको बी सी का वेक्टर यहीं पे रखना है, ओ बी के वेक्टर को आप यहाँ लेकर आए, दैट विल बी प्लस ओ बी, और राइट पर आ जाएगा आपके पास ओ सी, जो आपको निकालना है। सिंपल। बी और सी का वेक्टर आपके पास है -4 और 3। ओ बी का वेक्टर भी आपके पास है, और आपको दिया हुआ है पार्ट ए में 3 और -5 इज इक्वल्स टू ओ सी। अब सिंपल माइनस को ऐड करना है, -4 प्लस 3 इट्स -1, 3 माइनस 5 इट्स -2। ये आपका वेक्टर आ जाएगा ओ सी का। लेकिन मुझे फाइंड क्या करने को बोला है? मुझे फाइंड करने को बोला है कोऑर्डिनेट्स। जब कोऑर्डिनेट्स बोला हुआ है तो मैं लिखूँ यहाँ पर -1 एंड -2। ऑलराइट, कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखना है आंसर, मुझे उसने कहा है आपसे। नेक्स्ट वन, इट सेज AD इज √74 एंड D इज -3 एंड N, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ N। ये जो आपको दिया हुआ है इसने AD, दैट मीन्स इट इज द मैग्नीट्यूड, राइट। अब ज़रा A का मुझे वेक्टर दोबारा लिख लेता हूँ ज़रा। A मेरे पास पॉइंट क्या है? A के पॉइंट्स हैं मेरे पास 2 and 3। A इज 2 and 3। ऑलराइट, अब मुझे यहाँ पर निकालना है AD का मैग्नीट्यूड। ऑलराइट, D मुझे दे दिया उन्होंने, तो पहले निकालते हैं भाई AD। अच्छा, AD क्या होगा? AD होगा मेरे पास OD माइनस OA, ये हो जाएगा। OD का वेक्टर क्या है? -3 और N, ठीक है ना। माइनस OA का वेक्टर क्या है मेरे पास? 2 and 3। सिंप्लीफाई करूं अगर मैं इसको, तो ये आएगा -5 एंड N -3। ये आ जाएगा AD का वेक्टर, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? AD का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा? AD मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू √x² प्लस y²। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड। क्यों फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं बेटा? क्योंकि आपको दिया भी तो मैग्नीट्यूड है, तो जो चीज़ दी जाती है उसको अप्लाई कर दो आप। सो इट विल, इस पर आप क्या करोगे? इट विल बी √74 इज इक्वल्स टू √x इज वॉट? -5 का होल स्क्वायर प्लस y इज वॉट? N-3 का होल स्क्वायर। दोनों साइड पे रूट और रूट आप कैंसिल कर दो, क्या बचा आपके पास? 74 इज इक्वल्स टू -5 स्क्वायर इज 25 प्लस, यहाँ पर आपकी बनेगी आइडेंटिटी। क्या है आइडेंटिटी? A² -2AB प्लस B²। वैल्यू प्लेस करते हैं। A क्या है आपके पास? N है,
बी के आपके पास 3 है, सिंप्लीफाई करें इसको, दैट विल बी 25 प्लस एन स्क्वायर माइनस 6n प्लस 9 एंड इट इज इक्वल्स टू 74। अब अपनी इक्वेशन को ज़रा करेक्ट फॉर्म में लेकर आते हैं। सो दैट इज एन स्क्वायर माइनस 6n। नंबर्स की बात करते हैं, 25 और 9 आपके पास ऐड हुए, 25 प्लस 9 और 74 राइट पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 74, यू विल गेट माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आपने अप्लाई करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या आप कैलकुलेटर से इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। इक्वेशन मोड पे आओगे, यहाँ नंबर 3 को सेलेक्ट करोगे, आपके पास ए क्या है, ए इज़ 1, वो नंबर जो स्क्वायर के साथ लिखा हो इट इज़ 1। बी क्या है, इट्स -6 एंड द वैल्यू फॉर सी इज़ -40। सिंप्लीफाई किया, यू विल गेट द वैल्यू फॉर n इज 10, n इज 10 एंड n इज -4। तो ये आपको दो वैल्यूज निकालने का कहा था, ये निकाल लिया आपने। पेपर में आपने इसको डायरेक्ट कभी नहीं करना, क्योंकि सवाल की वेटेज 3 मार्क की होती है। आपने हमेशा इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। जो मेथड मैंने आपको बताया डायरेक्ट कैलकुलेटर से बेटा, इससे अपना आंसर आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन पार्ट बी, OPRQ इट्स अ पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम का मतलब क्या हुआ, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो अगर ये मेरे पास P है तो मैं मार्क कर दूं कि भाई ये भी मेरे पास P होगा और ये भी मेरे पास Q होगा। ये मैंने खुद ही मार्क कर दिया द वर्ड पैरेललोग्राम की वजह से। K इज द मिड पॉइंट। अच्छा, K मिड पॉइंट है तो K को मार्क कर दिया। इसका मतलब ये होगा कि ये पूरा मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी Q/2, क्योंकि मिड पॉइंट है मेरे पास K, ठीक है। एंड L इज द पॉइंट ऑन R। KL मुझे दिया हुआ है P-1/10Q एंड यू नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ PL रेशियो LR। आपको समझ नहीं आया कि यहाँ पर हमें कैसे स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर आपके पास हिंट होती है क्या, KL। आप KL पे काम करना शुरू कर दें, ठीक है ना। अब मैं भी स्टार्ट करता हूँ भाई, KL पे काम करना स्टार्ट करते हैं। अब मुझे K से L जाना है, ठीक है ना। मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ K से L, तो पहले एक काम करते हैं, मैं आता हूँ K से लेके O आता हूँ। अगर मैं K से O आया, ये हुआ -Q/2, सही है ना। फिर मैं आया O से लेके P तक, तो मैंने कवर किया P, और फिर मैं आ गया P से लेके L। अब PL क्या है ये तो मुझे मालूम ही नहीं है, तो मैंने कह दिया भाई ये आ गया मैं P से लेके L, ठीक है, इज इक्वल्स टू KL आपको दिया हुआ कितना है, ये आपको दिया है P-1/10Q, तो उसको मैंने इक्वेट किया P-1/10Q के साथ इक्वेट किया। ये बात समझ आई, ठीक है जी। अब एक आइडेंटिफाई आपने करनी है वर्ड पैरेललोग्राम से। ये जो PL होगा इसमें P नहीं होगा, मतलब P का मतलब ये हुआ स्मॉल p नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम में ये साइड और ये साइड हमारे पास पैरेलल होगी। अगर वेक्टर्स में हमारे पास साइड पैरेलल होती हैं तो वो एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होती है। क्या मतलब कि अगर यहाँ पर Q है तो ये जो भी वेक्टर आएगा वो इन टर्म्स ऑफ Q आएगा, वहाँ पर P नहीं आएगा मेरे पास, ठीक है। तो अब मैं पहले काम ये करता हूँ कि मैं P को साइड कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा P -Q/2 प्लस PL इज इक्वल्स टू P -1/10Q। साइड को अगर मैं इक्वेट करूँ, या यूँ समझिए आप, P से P तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास। अब मैंने Q को इक्वेट करना है। Q के साथ यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखें गौर से, ये लिखा हुआ है -1/2 प्लस PL, और राइट पे क्या लिखा हुआ है -1/10 और Q, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ से मेरे पास आराम से PL आ सकता है। तो PL इज इक्वल्स टू -1/10Q प्लस Q/2। एलसीएम लिया, एलसीएम आ जाएगा मेरे पास इसका 10, इट विल बी -Q प्लस 5Q। तो 5 - 1 क्या हो जाएगा, 4Q/10, ये आ रहा है मेरे पास PL, ठीक है जी। इसको आगे बढ़ाते हैं, तो PL 4/10Q जो आया, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2 एंड इट विल बी 5, तो ये आएगा 2/5Q PL। अब इसको हम कैसे समझें, क्या समझें इसको, बहुत सिंपल सी बात है बेटा। अब देखें, ये कह रहा है PL क्या होगा, 2/5 होगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर P से लेके L ये 2 यूनिट्स है, तो ये पूरा मेरे पास कितना यूनिट्स होगा, 5 यूनिट्स होगा। ये मतलब हुआ 2 का और 5 का। तो अब मैं आपसे पूछूं कि यार ये बचा कितना, ये कितना बचा, तो 5 - 2 किया 3 आ जाएगा। तो अगर आपके पास PL, P से लेके L अगर 2 होगा, तो L से लेके R आपके पास 3 होगा, तो आंसर आएगा 2/3। ये आपका आंसर हुआ। ऑलराइट,
तो ये आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको पेपर समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल ट्राई कि मैं उसको एक्सप्लेन करूँ, और कोई अगर गलती से सिली मिस्टेक हो गई हो, कोई एरर आ गया हो तो उसको भी एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा। टाइपो एरर हो सकता है, ठीक है। तो कोई मसला हो ज़रूर पूछिएगा इससे। आई होप कि ये चैनल से आपको आपके ओ लेवल मैथ्स कॉन्टेंट में आपको हेल्प हो रही हो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।